हेलो फ्रेंड्स। सो आई नो दैट कि हमारा फोर्थ चैप्टर है वो अभी ख़त्म पूरा नहीं हुआ, हमने हमारे न्यूमेरिकल्स अभी नहीं किए, बट हम उसको बाद में कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स को हम जब मैं उसका एक वीडियो पूरा भेजूंगी उसके ऊपर करेंगे। जब वो न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम हमारा चैप्टर नंबर 15 अभी चालू कर रहे हैं। बाद में जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, जो हमारा पूरा 3 है, वो हमारा पूरा नहीं है, वो करेंगे। So we know that all living organisms need food. Food supply protein, carbohydrate, fat, vitamin, minerals, all which are required for body development, growth and health. Both plant and animal are major source of the food for us. We obtain most of the food from the agriculture and animal hus- husbandries. We read the newspaper. The effort of always being made improve product from the agriculture and animal husbandries. Why is this necessary? Why cannot make to the current level of the production? So food and food resources है। फूड रिसोर्सेज हम कहेंगे तो फूड रिसोर्सेज हमारे लिए क्या होंगे? एग्रीकल्चर है और एनिमल फूड रिसोर्सेज है। मोस्ट ऑफली वेजिटेरियन है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर। नाउ नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो डिपेंड ऑन द एनिमल्स ऑल्सो। सो हमारे लिए इन दोनों चीजों की प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना है, तो उसके बारे में ये पूरे का पूरा चैप्टर है। वाई कैन नॉट बी मेक टू करंट लेवल प्रोडक्शन? इंडिया इज अ वेरी populous country. Our population is more than billion people and it is still growing. As the food of growing population, we soon needed more than the quarter and billion ton of the grain. Every year this can be done farming on the more land. But Indian already intensive culture, as the result, we do not have any major scope for the increasing the area of the land under the cultivations. Though, therefore, the necessary of increase our production efficiency for both crops and livestock. ओके, फर्स्ट क्या हुआ कि हमारे इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन है और सारी पॉपुलेशन को रहने के लिए जगह चाहिए होगी। उसके अलावा खाना भी इतना ही चाहिए होगा जितना हमें अब फार्मिंग से एक एक एकड़ जमीन में जितना खाना बनता है उतना ही बनेगा, रातों रात तो नहीं हो सकता। और जो हमारी बाकी सारी जो है, हमें रहना भी है यहाँ पे, तो रहने के लिए अलग कल्टीवेशन चाहिए, तो हमारा एरिया है वो तो हम बढ़ा नहीं सकते। इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि हमारी प्रोडक्शन है, जो एक एकड़ में हमारी प्रोडक्शन पहले 10 जने को खाना मिल सकता था, अब हमें ऐसी प्रोडक्शन मिल जाए कि एक एकड़ में 20 या 25 लोगों को खाना मिल जाए, तो हमें हमारी एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव करनी पड़ेगी। एफर्ट टू मीट द फूड डिमांड by the increasing food production have led to some success so far. We have been green revolution, which is continued increase in of food grain production. We have also had the right revolution, which has been led better the more efficient and use of the well availability of milk. How this revolution means our nature resource and getting the use to more intensively. As the result, there are more chance of causing damage of for nature resource to point destroying their balance completely. Therefore, there is the important that we should increase food production without degrading our environment and this and disturbing the balance maintain it. Hence, there is a need of sustainable practice and agriculture animal husbandries. क्या हुआ कि हमें प्रोडक्शन करना है, बहुत सारा खाना का प्रोडक्शन करना है, पर हम उसके लिए हमारा जो पूरा इन्वायरमेंट है उसका बैलेंस नहीं बिगाड़ सकते। सो हमें ऐसी तरीका सोचना पड़ेगा जिसकी वजह से हमें जो खाना भी मिल जाए और हमारी जो उसे हमारी मोस्ट ऑफली इन्वायरमेंट है उसे कोई नुकसान ना हो। So also simple increase in a grain production for the store warehouse cannot be solve the problem of manufacturing of hunger. People should be money to purchase food.
Food security depends on both availability of food and access. Thus, majority of population depend on agriculture for their livelihoods. Increasing the income of people working in agriculture is therefore necessary to combat problem of hunger. Scientific measurement practice we should be undertaken. Obtain the high yield for the farm. From this sustained livelihood of the one should undertaken mixed farming, undercropping and undergraded farming practice. For this example, agriculture, livestock, poultry and fisheries and beekeeping. सो मोस्ट ऑफली ये सारी चीजें हैं उसके एक बिजनेस की तरह लिया जाता है. मोस्टली कैसे उसको हाइब्रिड किया जाए, कैसे से ज्यादा हाई यील्ड मींस के कैसे से ज्यादा प्रोडक्शन मींस यहाँ जो प्रोडक्शन के एंड में मिलता है उसे यील्ड कहते हैं. सो हाई यील्ड कैसे मिल सकती है, तो हमारे लिए यहाँ पे हम कैसे पढ़ेंगे लाइव स्टॉक जो हमारे खाना बनाएंगे, पोल्ट्री फिशरीज में फिश में से कौन कौन सी फिश खा सकते हैं, और बी कीपिंग हमारी जो मधुमक्खी है उसमें से जो हनी मिलता है उसके बारे में. दिस इज question to become how do we increase the yield of crop and livestock means के जो हम खाना रखते हैं कि उसे कहते हैं लिव स्टॉक्स. तो हमें क्रॉप की यील्ड को बढ़ाना है और हमारे लिव स्टॉक को बढ़ाना है. इम्प्रूव इन अ क्रॉप यील्ड हमारी क्रॉप की यील्ड को जो हमारी लास्ट यील्ड है वो मिलती है. सीरियल सच एज wheat, rice, maize, millet, sorghums provided as the carbohydrate for the energy required. Pluses like grams, pea, black grams, green grams, and pigeon pea and lentil प्रोवाइड विद द प्रोटीन. और ऊपर ना बधे छे, ऊपर के सारे धान है और नीचे के सारे कठोर है, दोनों के नाम दिए गए हैं. और जो मोस्ट ऑफली प्लसेस है वो सारी दाल और वो है वो प्रोटीन ज्यादा प्रोवाइड करती है. जो सारी सीरियल्स है जैसे कि व्हीट है, राइस है, मेज है, वो सारी चीजें कौन सी चीजें प्रोवाइड करती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करती है. So all oil seeds including soybean, groundnut, sesame cluster, mustard lichen, flowers provide with the necessary fat, and vegetable spices and food provide the range of vitamins and minerals in addition to small amount of the protein, carbohydrates, fats. In addition, this food and crops follow groups in like bersems, oats, southern grass and raise as the food of livestock. अब देखो इसके अलावा जो ये सारी चीजें हम खाते हैं उसमें जो प्रोटीन है वो हमें कहाँ से मिलता है, हमें मिनरल्स कहाँ से मिलता है, फ्रूट में से विटामिन मिलता है. तो अलग अलग जो सारी चीजें हमें प्रोवाइड मिलती है हमारी बॉडी को. अब इसके अलावा जो हमारे लाइव स्टॉक है उसमें बरसीन, ओट्स और सघन ग्रास रखे जाते हैं. तो यहाँ पे थोड़े जो सीड्स है वो दिए गए हैं और क्रॉप्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स. सो क्वेश्चन, व्हाट डू वी गेट सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. सीरियल्स में से कार्बोहाइड्रेट्स, प्लसेस में से प्रोटीन एंड फ्रूट में से और विटामिन एंड मिनरल्स. डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर एंड photo periods for their growth and competition of life cycle, and photo periods of the related to duration of sunlight. Okay, photo period means sunlight जो मिलती है और photosynthesis process होती है उसे photo period कहते हैं, कोई फोटोग्राफी नहीं होती. सो डिफरेंट क्रॉप जो अलग अलग क्रॉप होते हैं उनके लिए अलग अलग क्लाइमेट होता है. जैसे कि सेब है जो हमारा एप्पल है वो मोस्ट ऑफली ठंडे ज्यादा होता है. तो मोस्ट ऑफली श्रीनगर है जो हमारी जम्मू कश्मीर है, मनाली है, वहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. यहाँ पे उनके ट्री बहुत ही कम मिले जाते हैं, मिलते हैं बट नहीं इतने अच्छे नहीं मिलते जितने कश्मीरी सेब होते हैं. तो हम कहते हैं कि जो उसका क्लाइमेट है, कंडीशन होती है, टेम्परेचर होता है और उसकी फोटो पीरियड्स होती है कि कितने टाइम तक सनलाइट उसके ऊपर आएगी और कितने टाइम तक वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ग्रोथ और कंपेयर और देयर लाइफ साइकिल.
are related to during the sunlight growth and plant flowering and the depending of sunlight. As well, all know the plant manufacture their food and sunlight by the process of photosynthesis. There are some crops which are grow in a rainy season called the Kharif season from the month of June to October, and some of the growth in a winter season called the Rabi season from the November टू अप्रैल. जो दो सीजन के जो हमें क्रॉप्स लेते हैं, फर्स्ट इज अ खरीफ सीजन एंड सेकंड इज अ रबी सीजन. सो खरीफ सीजन इज अ जून टू अक्टूबर एंड रबी सीजन इज अ नवंबर टू अप्रैल. Paddy, soybean, pigeon, pea, maize, cotton, green grams and black grams are kharif and grams, and peas, mustard, lilies is a rabi crops. So in India there has been a four type of increase in the production of food grain from the 1950 to 2010, which is 25% increase in a cultivated land area. How have been increased the production been achieved? If you think that the practice involving the farming, we can see that we divide into three stages. The first stage is choice of seeding. The second stage is nurturing plant, and third season is a protection and growing of the harvest crop from the losses. This is a major group activity of important crop yield can be classified. तो हमें जो कभी हमें कोई क्रॉप है, क्रॉप को कैसे हम रखेंगे, कैसे हम उसको रखेंगे. फर्स्ट स्टेज है कि चूजिंग द सीड. सीड को चूज करना है कि कैसे सीड होंगे. देन हार्वेस्टिंग, कैसे उसको हार्वेस्ट करेंगे, कैसे उसको रखेंगे. देन लास्ट वन इज अ प्रोटेक्शन, उसे कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. सो क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट. Crop variety improvement. This process depend on the finding a crop variant from the given good yield. Variant of the stain crop can be selected by the breeding from the various useful characteristics such as disease resistance, response to fertilizer, product quality, high yield. One was for the impropagation desirable characteristics into crop variety is by hybrid. तो फर्स्ट इज हम कैसे क्रॉप की इंप्रूवमेंट करेंगे, वेराइटी को इंप्रूवमेंट करेंगे. तो उसका सीड होगा वो लेंगे. तो वो सीड कैसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो डिजीज ना होना, ऐसी अंदर उसमें पावर होनी चाहिए. सो फर्स्ट इज अ डिजीज रेजिस्टेंस. सेकेंड वन रिस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर, उसका रिस्पॉन्स होगा फर्टिलाइजर के तरफ बहुत ज्यादा होगा कि अगर फर्टिलाइजर डाला जाए तो फास्ट उसका ग्रो होगा और वो जल्दी उग जाएगा. सो रिस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर. प्रोडक्ट क्वालिटी विल बी हाई यील्ड, जो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी वो भी अच्छी होनी चाहिए और हमारी यील्ड होगी जो हमें मिलती है वो भी हाई होनी चाहिए. वन वे ऑफ द incorporating disease character into crop variety is by हाइब्रिडाइजेशन. अगर कभी ऐसा हो कि कोई हाइब्रिडाइज किया गया कि हमें कोई बड़ा मैंगो बनाना है, तो हम दो मैंगो की अलग अलग जो ब्रीड होगी उसे लेके फिर उसमें से एक नया मैंगो अच्छा बनाएंगे. तो दिस इज हाइब्रिड होगा तो भी उसके लिए हमें एक अच्छी ब्रीड चाहिए होगी. तो हाइब्रिडाइजेशन रिफर टू क्रॉपिंग बिटवीन जेनेरिक सिमिलर प्लांट. दिस क्रॉसिंग में बी between different variety, interspecific between the different species of the same genus, or the intergenetic between the different genera. So there's the another way to improving crop by introducing gen, then this would be provide desirable character. This is a रिजल्ट ऑफ जनरली मॉडिफाई क्रॉप. ओके, तो मॉडिफाई क्रॉप को हम जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे मॉडिफाई क्रॉप बहुत ही अच्छी तरह होंगे. पहले क्या करेंगे कि हमारा कोई भी क्रॉप है, कौन कौन सी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है. सेम फैमिली के होंगे. फर्स्ट इज अ डिफरेंट वेरिएटी, उनकी वेराइटी अलग होगी. सेकंड क्या होगा, उनके जीनस अलग हो सकते हैं. या फिर ओके, तो लेमन है और हमारा
ऑरेंज है, दोनों के दोनों साइट्रस फैमिली से बिलोंग करते हैं और साइट्रस उनका जीनस होता है। उनकी फैमिली उनके ग्रुप्स अलग होते हैं, फिर भी अगर हमें बड़े लेमन चाहिए होंगे तो हम जो हमारा ऑरेंज है उसके साथ लेमन को हाइब्रिड करेंगे। हाइब्रिड करने से ये होगा कि हमें हमारा लेमन तो मिलेगा, उसके साथ जो उसकी साइज होगी लेमन की वो बड़ी हो जाएगी। तो दैट्स इज द मेन प्रॉपर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमें जो चाहिए वो उस क्रॉप को, जो हमारा एक क्रॉप था छोटा नींबू मिल रहा था, उसकी वजह से अब बड़ा नींबू आएगा। सो दैट इज our main modification of the crop. For new variety of crop that is acceptable, necessary that the variant product of high yield under the different condition of are found different areas. Farmers would need to be provided with the good quantity seed for the particular variety. This is the seed should be all the same variety and germinate under the same condition. Cultivation practice and crop yield are related, whether soil quality and undiluted water. Since the weather conditions such as fluid situation are unpredictable, varieties can be grown in a diverse climate condition are also useful, and similarly variety tolerate high soil sanitary would be developed some the factor of वेराइटी इंपॉर्टेंट डन। ओके, तो अब क्या होगा, जो कल्टीवेशन है, हम कोई भी चीज को प्रैक्टिस करेंगे क्रॉप की यील्ड को बताने के लिए, तो सॉइल उसके लिए बहुत ही उनका सॉइल जो अगर थोड़ी सॉइल में प्रॉब्लम भी होगी तो भी हमारा कल्टीवेशन इतना अच्छा होगा कि सॉइल में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाई यील्ड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप एकड़, जो हमारा प्रोडक्शन है उसे एकड़ वाइज हम बढ़ा देंगे। So improve the quality. Quality consider the crop product vary from the crop to crop. Quality is important in a weight. Protein quality in the pulses and oil quantity in the oil seed. It is the presenting quantity in a fruit and the vegetable. Okay, तुम लोगों को पता होगा अलग अलग ब्रीड में अलग अलग होगी। जबकि तुम लोग कोई दो टाइप के व्हीट लोगे तो दोनों टाइप अलग होगी, किसमें प्रोटीन ज्यादा होगा, किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा। पल्सेस लोगे तो उसमें भी प्रोटीन का कोई कोई चीजें होगी वो बहुत अच्छी होगी, तुम कहेंगे हाई प्रोटीन होगी और वो सारी। तो एक ही ब्रीड के अंदर अलग अलग। तो क्वालिटी कैसे हम करेंगे कि यील्ड कैसे बढ़ाएंगे, पर एकड़ हमारा बढ़ेगा। क्वालिटी कैसे होगी कि जो हम सीड ले रहे हैं उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हमें जो फीचर चाहिए वो मिले। Biotic and abiotic resistance. Crop production can be grow down due to the biotic disease in insects and nematodes, and this abiotic drugs sell in water, lagging heat and cold and froze. तो हमारी दो जो चीज़ें हैं बायोटिक एंड एबायोटिक, जो हमारी बायोटिक चीज़ें हैं जो हमारे जीने की जो चीज़ें हैं जो सांस लेती है उसकी वजह से, जैसे कि डिजीज, कोई भी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होते हैं जिसकी वजह से क्रॉप होते हैं वो बिगड़ जाते हैं। सेकेंड वन इज इंसेक्ट, वो भी हमारे इंसेक्ट से हमारी सीड को खा जाते हैं। निमोडोट्स मीन्स के जो आजू बाजू उसके दूसरी जो वनस्पति हो जाती है उसे निमोडोट्स कहते हैं। देन द वॉट एंड सेलिनिटी मीन्स जो हमारी बॉल है उसकी भी मिल जाती है। वाटर, लॉगिंग हीट और फ्रोजन, कोल्ड एंड फ्रोजन, कभी कभी फ्रोज हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो है। तो स्ट्रेस अंडर दिस डिफरेंट सिचुएशन वेराइटी रेजिस्ट टू दिस स्ट्रेस इज इम्पोर्टेंट क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये सारी चीज़ों से वो रेजिस्ट करनी चाहिए हम थोड़ी देरी, तो ऐसी वेराइटी हमें मिल जाएगी तो हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। Improve the crop production. Change in a maturity duration, the shorter duration of the crop from the showing the harvesting and the more economical variety. Such show as a duration allow farmer to grow multiple round of the crop in a year. Shorts of duration also reduce the cost of crop and duration also reduce the cost of crop production. Uniform maturity makes the harvesting process easily reduce the losing of the harvesting. ओके, कोई भी हमारी सॉइल है, सॉइल के अंदर वन टाइप ऑफ ही क्रॉप हम लेंगे तो वो सारे के सारे एक ही तरह के एलिमेंट सारे लेंगे। अब वो एलिमेंट सारे खत्म हो जाएंगे, सॉइल हमारे लिए
पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सॉइल को हम वापस से दूसरी कोई क्रॉप लेंगे, जिसकी वजह से जो हमारी पहले क्रॉप है वो कम हो जाएंगे, उसको उसे वापस करें। जैसे कि हम कभी कभी जो वीट का कभी वीट लिया जाता है पहले, उसके बाद उसके अंदर प्लसेस लिए जाते हैं। क्यों प्लसेस लिए जाते हैं? क्योंकि प्रोटीन है उसके अंदर, वापस प्लसेस है वो वापस आ जाएंगे। जो हमारे वीट ने कार्बोहाइड्रेट्स और सारे एलिमेंट्स ज्यादा ले लिए हैं उसकी वजह से जो नाइट्रोजन सारा फ्रिक्शन नहीं हुआ, वो सारा प्लसेस है वो नाइट्रोजन फिक्स कर देंगे, जिसकी वजह से हमें ये काम हो सकता है। सो हम वेराइटी कर सकते हैं। देन वाइडर एबिलिटीज, डेवलपिंग द वेराइटी ऑफ वाइडर adaptability will be help in stabilizing a crop production under the different environment condition. One variety can then be grow under the different climate condition in a different area. जो हमारी वेराइटी है वो अलग अलग कंडीशन में भी सर्वाइव करनी चाहिए। अगर जो उसे ठंडी में रख जाए तो वो ठंडी जैसे ही, वैसे तो उसकी अडेप्टिविटी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। सो डिजायर agronomical character, tallness and proneness, branching and disable character, folded growths and draftness is desire and cells. Then less nutrient are consumed by this crop. This developing variety is desired atromedical character help to higher production. Okay, higher production में सारी इतनी सारी क्वालिटी होनी चाहिए, तो ये सारी रिएक्शन लिखनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट डन बाय दिस, तो ये 5 पॉइंट है, आपको होमवर्क में टू टाइम्स लिखने हैं। ओके, आज का लेक्चर इतना ही। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।